Hey everyone and welcome to this new video. In the last video we have seen like how to do the visualization using the Python programming languages, and we have also used the data set of World Test Championship and produced some beautiful result. If you have already not watched that video, then you can go to my channel and you can watch that video, that how to do and how to perform visualization using Python programming language. But today I am going to give you a more simpler way of doing or achieving that kind of stuff. देखिए, आपको डेटा का यूज करना है, आपको डेटा के साथ आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, बट दैट डजेंट मैटर विच काइंड ऑफ टूल और विच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग फॉर दैट आउटपुट। आप पाइथन या फिर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज डायरेक्टली सम विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर लाइक हियर आई विल बी गोइंग टू यूज टैबलू सॉफ्टवेयर फॉर दैट काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन। सो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ टैबलू से आप चुटकियों में वो काम कैसे कर सकते हो जिसके लिए आपको हार्ड लाइन या फिर हार्ड कोड आपको करना पड़ता है पाइथन लैंग्वेज का यूज करके या किसी भी लैंग्वेज का यूज करके। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, स्टे ट्यून टिल द लास्ट, टिल टू द स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और आज आप एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपकी सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, टैबलू डेस्कटॉप। दिस सॉफ्टवेयर मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन योर सॉफ्टवेयर। सो और आप परचेज भी कर सकते हो इसको, या फिर आप जो इनका ट्रायल वर्जन मिलता है उसका यूज करके भी आप अपने आपको जो भी काम करना है वो आप काम कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द ओपनिंग स्क्रीन ऑफ टैबलू desktop version, and what we will be going to use, we will be going to do, first of all we will be importing our data set, and then we will be producing some beautiful result out of that data set. मेरे मशीन में, मेरे लोकल मशीन में आई हैव ए डेटा सेट ऑफ फैब 5। आप क्रिकेट में जानते होगे फैब 4 हमेशा बोला जाता है, बट आई हैव इंक्लूडेड बाबर आजम आल्सो, बिकॉज इन फैब 4 there comes 4 players: Virat Kohli, Kane Williamson, Steven Smith and Joe Root. But I am putting Babar Azam also here, but because on the in the cricket community or on Twitter, if you see, there are lots of people who always used to compare Babar Azam with Virat Kohli or Babar Azam with any other player. So that is why I have tried including Babar Azam also here, so that we can check कि कौन कहाँ पे stand करता है. So first of all, let me first import the data set in Tableau. So आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि there is a option given here which is connect, and you can connect your Tableau desktop with any kind of data or any kind of file. Let me first click on this option which is written as more, and let me select the file. So this is the file I will be going to use, fab5 data. So let me open this file. So now Tableau desktop जो है वो काफ़ी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, काफ़ी फास्ट सॉफ्टवेयर है। ये अपने आप आपके लोकल मशीन में जो डेटा उसके साथ लाइव कनेक्शन बना लेता है और उस डेटा को इंपोर्ट कर लेता है। Like we have just clicked on that data, or and that data is imported in this Tableau software. और आप उस डेटा को आप यहाँ देख भी पा रहे होगे. This data has several kind of rows and columns, and if you see the player names: Joe Root, Kohli, Williamson, Root, Smith, Azam, Root, Kohli. So you will see that the names are repeating. Why the names are repeating? Because we will be going to have the data of only 5 players. But why this data is repeating again and again? Because every player has 3 kind of data. One is for T20 format, second is for ODI format, and third is for test format. For example, अगर आप विराट कोहली का चेक करोगे यहाँ पे, विराट कोहली has this data in ODI, विराट कोहली has this data in test matches, or if you scroll up, Virat Kohli has this data in T20. So for every player, we have 3 kind of data according to the format they are playing. So now we have completed the importing of our data in this software. अभी हम directly jump करेंगे. Now we'll jump directly to the like the kind of thing, kind of operation we'll be going to perform in this Tableau desktop. और आप सीखेंगे कि कैसे इसका visualization Tableau पे किया जा सकता है एक आसान से तरीके से। यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा होगा sheet 1. जब भी आप किसी डेटा को इंपोर्ट करते हो, देन ऑटोमेटिकली दिस शीट इज क्रिएटेड. सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस शीट 1, यहाँ पे आपको एक
बड़ा सुंदर से काफी ब्यूटीफुल एक आपको स्क्रीन नजर आ रहा होगा, जहाँ पे आपको कई कई सारी चीजें दिखाई दे रही होगी। ड्रॉप फील्ड, ड्रॉप फील्ड, ड्रॉप फील्ड, दिस इज ए लेफ्ट टैब, दिस इज ए शो मी टैब, there are many kind of graphs given here which are not active as of now, and there are some filters and there are some color size text kind of commands given here. So what are these commands? अभी आप बने रहिएगा वीडियो के साथ, मैं आपको सब चीजें बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इंपोर्ट द डेटा। सॉरी, इंपोर्टिंग अपना हो चुका है। इंपोर्टिंग आप जैसे ही करते हो तो शीट में भी अपने आपके पास अपने आप ये जो कॉलम्स हैं आपके शीट में वो अपने आप बन के आ जाते हैं। सो व्हाट डज दिस कॉलम रिप्रेजेंट? लाइक बिफोर द नेम्स ऑफ सम कॉलम्स देयर आर रिटन एबीसी, एंड बिफोर द नेम्स ऑफ सम कॉलम वहाँ पे हैश लिखा हुआ है। देखिए जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम्स है, द काइंड ऑफ न्यूमेरिसिटी योर कॉलम है, आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है, नंबर्स में डेटा है, उसके आगे आप हमेशा हैश का सिंबल आपको मिलेगा। दिस रिप्रेजेंट दैट दिस इज ए न्यूमेरिकल डेटा एंड दिस इज ए स्ट्रिंग डेटा और टेक्स्ट डेटा। फॉर्मेट ओडीआई, T20 और टेस्ट, दिस इज ए स्ट्रिंग। आपके डेटा में कहीं पे भी कोई भी वर्ड या लेटर है तो दैट डेटा विल ऑलवेज बी गोइंग टू बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग, और अदरवाइज वो एक न्यूमेरिकल डेटा होगा। सो दीज थ्री और यू कैन से दीज टू कॉलम्स आर स्ट्रिंग डेटा एंड रेस्ट ऑफ कॉलम्स आर न्यूमेरिकल डेटा। सो what we want on the x-axis or what we want on the y-axis, that we first have to decide, and according to that we have to put those field names here. You can see here it is written columns and here it is written rows. So in the columns entry we will be going to pass the name of the data or pass the characteristic of that this data frame जो हमें columns में represent करना है। लेट स्टार्ट करते हैं प्लेयर नेम के साथ। यहाँ पे मैं प्लेयर मैंने लिख दिया है। जैसे एक चीज आप यू विल नोटिस वन थिंग, when I am typing player here, it is also automatically showing me that what are the columns matching to your entry. So this is a column. Let me press the enter button and again press the enter button. So now I have put the player names here in the columns, and this is importing or this is retrieving the player names, all the player names which is present in our data. See, our अपने data में जो player names है, there are total of 15 entries, but the player names, unique player names are only 5. So that is why it is retrieving only 5 names. Now on y-axis, or you can say, oh sorry, on x-axis, or you can say on the number of rows, what do you want? You want to compare those players on the basis of runs, on the basis of strike rate, or on the basis of average. Also you have to you can check or you can compare the players according to a particular format as well, or you can compare the players as a whole also. For example, if I am passing here runs and pressing the enter button, it is showing me the runs. But if you see if you hover over the runs, Power Azam 8,000, Joe Root 15,000 or Virat Kohli 22,000. So what it is doing, you can see it is automatically summing up the runs. आपके पास रन कॉलम में विराट कोहली के आगे 3 एंट्रीज है, तो विराट कोहली के वो तीनों हर एक फॉर्मेट के रन्स को ऐड करके यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको वो दे रहा है। सेकेंडली हमें क्या चाहिए वहाँ पे, एवरेज। वी विल बी चेकिंग द एवरेज एज वेल। So यहाँ पे मैंने एवरेज इंपोर्ट कर दिया है, एंड थर्ड थिंग इज स्ट्राइक रेट। सो आई एम इंपोर्टिंग द स्ट्राइक रेट एज वेल। सो दिस इज द काइंड ऑफ डेटा यू हैव, स्ट्राइक रेट, एवरेज एंड रन्स, और इन तीनों एंट्रीज का सम यहाँ पे किया हुआ है। बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू कंपेयर द प्लेयर्स। फॉर दैट you can use different kind of graphs are represented here, different kinds of graphs are given in the show me pane. आप देख सकते हो कि किस ग्राफ को आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग द बार काइंड ऑफ graph here, and for every player, like for Babar Azam, this is average, this is run, this is strike rate. For Joe Root, this is average, this is run, this is strike rate. And for every player it is visualizing, giving you the visualization of your data, average, sums, and but what we want to compare these players in a particular format. Let's suppose we want to compare these players in ODI format. So what you can do, see here you have filter names, filter major names. You can also sort, you can show filter, you can show highlighter. And what is this command doing? Marks, color, size, label, detail, tooltip. See,
if I want to represent every player with a different color, how how I am going to do this? Let me first enter the player name here. Let me first entry let me put the entry here of player name. Then I will just pick this player name and drag on the color. सी ऑटोमेटिकली कलर इज चेंज। हर एक प्लेयर का अपना एक अलग कलर आ चुका है, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा अब ईज ऑफ एक तरीके से विजुअलाइजेशन आप देख पा रहे होगे। मेजर वैल्यूज क्या है? अपने सम। यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, सम की बजाय हम एवरेज भी कर सकते हैं, मीडियन भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर नीड अपन इस चीज को चेक कर सकते हैं। फॉर्मेट में क्या होगा? यहाँ पे हम फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि द काइंड ऑफ फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेवल दिखाना चाहते हैं, लेवल पे जैसे क्लिक करेंगे शो मार्क्स लेवल, तो यहाँ पे अपने आप क्या करेगा? एवरेज के ऊपर एवरेज दिखा देगा, रन्स के ऊपर रन्स दिखा देगा, स्ट्राइक रेट के ऊपर स्ट्राइक रेट दिखा देगा। इट विल ऑटोमेटिकली प्लेस द लेवल ओवर द डेटा यू हैव। सो दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि हम इससे क्या विजुअलाइजेशन थोड़ा बढ़िया हो गया। इससे हमें पता चल गया कि विराट कोहली कितने रन है, स्टीवन स्मिथ के कितने रन है, विलियमसन के कितने रन है। तो इससे ये हम कैसे कर पाए हैं? दिस वी आर डूइंग यूजिंग द कमांड और यूजिंग द बटन लेबल हियर। दिस इज साइज। साइज क्या करता है? साइज आपके बार्स के साइज को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने साइज कम कर दिया तो बार्स कम साइज के हो गए, साइज ज्यादा कर दिया बार ज्यादा साइज के हो गए। सो आप साइज भी चेंज कर सकते हो यूजिंग दिस कमांड। नाउ सी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे एवरेज में आपको 147 दिखा रहा है, एवरेज 135 दिखा रहा है, 133 का, मतलब दिस इज शोइंग यू कंप्लीट नंबर। आपको डेसिमल में वैल्यूज यहाँ पे मिल नहीं रही है। तो आप फॉर्मेट में जाके क्या करोगे, जो मैं आपको बता रहा था, यू विल गो टू दिस फॉर्मेट बटन एंड इन फॉर्मेट बटन आप इसको 1 2 3 4 5 6 गए नंबर आप कस्टम कर दोगे। कस्टम से ये क्या होगा? इट विल बी लाइक कन्वर्टेड टू योर डेसिमल प्लेसेस, और आप कस्टमली आप इस नंबर को चेंज कर रहे हो। आप मैं यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे 2, और आप जस्ट इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, अपने आप देखोगे डेटा आपका डेसिमल्स में आ जाएगा, एवरेज का भी। सिमिलरली स्ट्राइक रेट भी आपको पता है डेसिमल में हो सकता है, तो स्ट्राइक रेट को भी हम फॉर्मेट करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है आपके डेटा में, आपके विजुअलाइजेशन को काफी अच्छा बनाते हैं ये, और आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कस्टम में जाके इसको भी चेंज कर दिया, तो ये हो गया। नंबर्स कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकते, सॉरी रन्स, तो उसको हम वैसे ही रहने देंगे। नाउ आपके जो विजुअलाइजेशन है उसका जो टाइटल है, वो टाइटल अभी हमने नहीं दिया, तो आप यहाँ पे टाइटल भी दे सकते हो। टाइटल लेट मी पुट द टाइटल कंपेयरिंग फैब 5 प्लेयर्स इन ODI इंटरनेशनल। ओके। आप यहाँ पे कलर, साइज, फॉन्ट ये सब चेंज कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग टू योर नीड आप ऐसा कर सकते हो। ओके, सो नाउ अपने जो अपना विजुअलाइजेशन है, दिस इज हैविंग ए ब्यूटीफुल टाइटल कंपेयरिंग 5 प्लेयर्स इन ODI इंटरनेशनल। यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इस बटन में अगर आप देखोगे देयर इज ए थिंग गिवन एज कैप्शन। अगर आप कैप्शन पे क्लिक करोगे तो आप जब इस विजुअलाइजेशन को एक्सपोर्ट करोगे तो आपके विजुअलाइजेशन में कैप्शन भी आएगा, और बाय डिफॉल्ट दिस इज द कैप्शन यू विल बी गोइंग टू हैव। बट आप इस कैप्शन को चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कैप्शन मिल जाएगा, आप चेंज कर सकते हो, या फिर आपको एक नया एंट्री करना तो वो नया एंट्री भी आप कर सकते हो। सो दिस इज हाउ आप उस कैप्शन को मॉडिफाई कर सकते हो। और हम इस डेटा पे क्या कर सकते हैं? सी आपने यहाँ पे एवरेज रन स्ट्राइक रेट से कंपेयर किया है, आप 50s या नंबर ऑफ हंड्रेड्स, सेंचुरीज ये सब भी डाल सकते हो आप यहाँ पे, और नंबर ऑफ इनिंग्स, हर प्लेयर कितना खेला है वो सब भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आपको वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसमें भी आप ट्विकिंग और आप ये सब चीजें चेंज कर सकते हो कि रिवर्स स्केल आपको क्या रखना है, लॉगरिथम रखना है, एक्सिस टाइटल क्या रखना है, वैल्यूज की जगह अगर आप कुछ और रखना चाहते हो तो वो सब भी चेंज कर सकते हो। सी आपको जो भी चेंज करना है आप उस पर क्लिक करो और टैब्लो विल ऑटोमेटिकली डू एवरीथिंग फॉर यू। आपको जस्ट उसमें एंट्रीज करनी है, आपको जो सही लगता है वो एंट्रीज करो, आप अपने आप वो सब चीजें सही हो जाएगी। अब और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, आप अगर एवरेज कॉलम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक फिल्टर का बटन दिखा रहा है आपको, ठीक है। फिल्टर के बटन में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप उस डेटा में फिल्टर लगा सकते हो कि जिसका एवरेज इससे ज्यादा है मुझे वही डेटा चाहिए। बट यहाँ पे मैं कोई ऐसा फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ, बट आप ऐसा यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अच्छा, शो फिल्टर मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेट
एट्रीब्यूट में आप क्या कर सकते हो, आप एट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स में इस तरीके से आपको वैल्यूज दिखाएगा एवरेज का ये, बट ये ऐसा हम नहीं चाहते हैं एट्रीब्यूट्स में, ठीक है। तो हम इसको अभी के लिए रिमूव कर देते हैं। हम यहाँ पे मेजर चाहते हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स हम यहाँ पे चाहते हैं, और हम चाहते हैं सम, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या आता है, एडिट इन शेल्फ, ऐड टेबल कैलकुलेशन, क्विक टेबल कैलकुलेशन। यहाँ पे आप क्विक टेबल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, मूविंग एवरेज, परसेंटाइल, डिफरेंसिंग, रनिंग टोटल, ये सब जो स्टैटिस्टिकल टर्म्स है ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएगी अगर आप ये सब चीज भी करना चाहते हो। एडिट इन सेल्फ अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सम के बजाय आप जो हार्ड कोड करके भी इसको चेंज कर सकते हो कि आप सम के बजाय क्या चाहते हो, कुछ और अगर आपको डेटा यहाँ पे चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। मेजर नेम्स में अगर आप फिल्टर्स में जाओगे तो यहाँ पे शो फिल्टर, शो हाइलाइटर मैंने बता दिया, क्लियर फिल्टर, सोर्ट आ गया। सोर्टिंग भी आप कर सकते हो इस डेटा की, अल्फाबेटिक वे में आप शॉर्टिंग कर सकते हो, मैनुअली में डेटा सोर्स ऑर्डर में आप शॉर्टिंग कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली शॉर्टिंग हो रही है, इनकी डिसेंडिंग में करोगे तो आपको डिसेंडिंग में शॉर्टिंग आपको मिल जाएगी। विराट कोहली यहाँ पे लास्ट में चले गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो, ठीक है, शॉर्टिंग कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक शॉर्टकट है शॉर्टिंग का, ठीक है। इससे भी आप ये चीज़ों को चेंज कर सकते हो। स्टैंडर्ड में आपको ये सब व्यूज वगैरह का फिट, हाइट्स वगैरह ये सब मिल जाएगा। यहाँ पे कैप्शन का मैंने आपको बता दिया, समरी भी आप डाल सकते हो। लेजेंड्स क्या है, कलर लेजेंड, जब आप इस डेटा को एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक कलर लेजेंड यहाँ पे दिखाई देगा, विच विल हैव द वैल्यूज लाइक ब्लू के लिए आप बाबर आजम रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऑरेंज में आप जो रूट रिप्रेजेंट कर रहे हो, केन विलियमसन मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद आप हर पर्टिकुलर प्लेयर का आप यहाँ पे ऑर्डर भी चेंज करो। फॉर एग्जांपल हम विराट कोहली के जो कॉलम है, विराट कोहली कॉलम को यहाँ प्लेस करना चाहते हो, विराट कोहली कॉलम को यहाँ प्लेस कर सकते हो, और आप बाबर आजम कॉलम को आप यहाँ प्लेस कर सकते हो। सो दिस इज हाउ कि आप इन चीज़ों को बड़ा इजीली आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक सेट का बटन आता है, आप यहाँ पे सेट भी कर सकते हो कि आपको सेट में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। और लेट मी चेक, और मैं आपको क्या इसमें दिखा सकता हूँ जो आपके लिए काम की चीज़ हो। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको बार लाइन दिखा है आपको, लेकिन अगर आप इसको लाइन में कन्वर्ट करना चाहो आप लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप एरिया में कन्वर्ट करना चाहो तो आप एरिया में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सर्कल्स में कन्वर्ट करना चाहो तो आप सर्कल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर नेट, आपको किस तरीके का विजुअलाइजेशन चाहिए वो आप उस तरीके से आप विजुअलाइजेशन यहाँ पे दिखा सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे अलग अलग तरीके की विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है, उस तरीके की चीज़ें आप दिखा सकते हो। ये कम्प्लीटली बेस करता है कि आपके पास किस तरीके का डेटा है, और वो डेटा क्या इस तरीके के विजुअलाइजेशन के लिए सही है या नहीं है, तो उस तरीके से आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बार प्लेयर का दोबारा से कलर्स ठीक कर देता हूँ, ठीक है। टूल टिप में जाके आप टूल टिप ये सब चीज़ें भी चेक कर सकते हो कि टैब्लो बुक है आपका, किस तरीके के फॉन्ट्स आने चाहिए, किस तरीके के साइज आने चाहिए, ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब चेक करते हैं कि जिस तरीके से हमने डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, दिस डेटा इज शोइंग अस द नंबर्स टेकन ऑफ ऑल द 3 फॉर्मेट्स, T20, टेस्ट एंड ODI। बट अगर हम पर्टिकुलरली एक फॉर्मेट के लिए चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें अगर सिर्फ और सिर्फ ODI का डेटा चाहिए और उस डेटा को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टेबल्स में, आपको यहाँ पे कॉलम नेम है फॉर्मेट कॉलम नेम में आपको पता है कि फॉर्मेट कॉलम नेम में हमारे पास गेम फॉर्मेट है। फॉर एग्जांपल ODI है, T20 है या टेस्ट है, विच एवर फॉर्मेट द प्लेयर्स आर प्लेइंग इट हैज दोज वैल्यूज। सब फॉर्मेट में अगर आपको सिर्फ ODI चाहिए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक क्रिएट बटन दिखाएगा, उसमें सेट दिखाई देगा। सेट इज ए कमांड, लाइक आप इसमें सेट कर सकते हो कि आपको किस तरीके का डेटा चाहिए। अगर हम इस कमांड पे क्लिक करते हैं तो देन दिस इज शोइंग यू द काइंड ऑफ यूनिक वैल्यूज दिस कॉलम हैज। और इस कॉलम में आपको जैसे पता है ODI, T20 और टेस्ट इस तरीके की वैल्यू है। अब ये जनरल तरीका है करने का, अदरवाइज आप कंडीशन भी यहाँ पे दे सकते हो, बाय फील्ड, बाय फॉर्मूला, आप मैनुअली लिखना चाहो तो वो सब भी दे सकते हो। अगर मैं जनरली यहाँ पे सिर्फ ODI सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओके दबा देता हूँ तो व्हाट दिस थिंग विल डू, ये जो फॉर्मेट एक कॉलम आपके पास, उस कॉलम में से एक आपके पास एक्स्ट्रा कॉलम रिट्रीव होके आ गया है जो कि सिर्फ ODI के लिए, बट स्टिल दिस डेटा स्टिल हैज द ऑल द डेटा ऑफ 3 फॉर्मेट्स। हम इसको क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे और फिल्टर्स में डाल देंगे। फिल्टर में हमने जैसे ही डाला तो आप फिल्टर्स को पता चल गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ
ओडीआई का डेटा चाहिए, तो ओडीआई इंटरनेशनल का डेटा में अपने आप आ गया। एवरेज 49, विराट कोहली का रन 12,169, स्टीवन स्मिथ के ये रन है, वेन विलियमसन के ये रन है, जो रूट के ये रन है, बाबर आजम के ये रन है। तो इस तरीके से भी आप पर्टिकुलरली फॉर्मेट वाइज भी आप ट्विकिंग अपने डेटा में, आप चेंजिंग, ये सब चीजें आप अपने डेटा में कर सकते हो। अब आपका एक तरीके से कंप्लीट विजुअलाइजेशन जो है वो हो चुका है, आपका काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे आप एक तरीके से एनोटेशन बोल सकते हो उसको, या फिर आप एक यहाँ पे स्टेटमेंट या फिर टेक्स्ट भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इसमें कौन विनर रहा कौन नहीं। जैसे यहाँ पे एनोटेट करके एक चीज है, आप यहाँ पे एरिया भी चूज कर सकते हो। अब एरिया में फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो यहाँ पे विराट कोहली इज क्लियर विनर। फॉर एग्जाम्पल हम रन्स के बेसिस पे कर रहे हैं तो विराट कोहली इज द क्लियर विनर, और इवन एवरेज के बेसिस पे भी कर रहे हैं तो विराट कोहली का एवरेज सबसे ज्यादा है, विराट कोहली इज द क्लियर विनर। तो यहाँ पे हमने इस चीज को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका फॉन्ट वगैरह, कलर वगैरह, साइज वगैरह सब हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके ग्राफ में ये चीज भी दिखाई देगी। आप इसको रेड कलर में दिखा सकते हो हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। अब आपको ये डेटा सेट जो आपको ये विजुअलाइजेशन है ये एक्सपोर्ट करना है। इसको एक्सपोर्ट आप कैसे करोगे, वर्कशीट में आप जाओगे, एक्सपोर्ट करोगे और इमेज पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप करोगे ये सारी चीजें आपको अपने डेटा, आपके विजुअलाइजेशन जो आपका एक्सपोर्टेशन होगा उसमें आपको चाहिए, सेव करोगे जैसे ही, तो आपसे बोलेगा आपको यहाँ पे कहाँ पे आपको सेव करना है इस चीज को। तो ये था टैब्लू का एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन, और टैब्लू का यूज करके हम क्रिकेट के ग्राफ्स को, क्रिकेट के चार्ट्स को, क्रिकेट के प्लेयर्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको इसमें सिखाई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर let me see you in the next video. Thank you for watching this video. Thank you.